सब तेरी वड्याई, कोई नाम न जाने मेरा, कोई नाम न जाने मेरा। ਹਾਂਜੀ ਦੋਸਤੋ, ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ ਟੂ ਸਿੰਘ ਵਲੌਗਸ ਅਗੇਨ। ਰਾਜ ਸਵਾਮੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਦੋਸਤੋ, ਅੱਜ ਯਾਨੀ ਕਿ 19 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਦਿਨ ਐਤਵਾਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਡੇਰਾ ਬਿਆਸ ਵਿੱਚ ਸਤਸੰਗ ਕੀਤਾ ਤੇ ਬਾਣੀ ਲਈ ਸੀ ਹਰ ਕੀ ਪੂਜਾ ਦੁਲੰਭ ਹੈ ਸੰਤੋ, ਜੋ ਕਿ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਸਤਸੰਗ ਕਰੀਬ 1 ਘੰਟਾ 15 ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਚੱਲਿਆ। ਅੱਜ ਦੇ ਸਤਸੰਗ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਫੀ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਕੁਝ ਮੇਨ ਪੁਆਇੰਟਸ ਨੇ। ਉਹ ਕੁਲ ਮਾਲਿਕ ਇੱਕ ਹੈ। ਭਗਤੀ ਸਿਰਫ ਉਸ ਇੱਕ ਦੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸਰੀਰ ਕਦੇ ਵੀ ਮਾਲਿਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਮਾਲਿਕ ਸਿਰਫ ਸ਼ਬਦ ਰੂਪ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜੋ ਸਰੀਰ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਮਾਇਆ ਰੂਪੀ ਹੈ। ਮਾਇਆ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਆਏ ਜਾਏ ਸੋ ਮਾਇਆ। ਜੋ ਵੀ ਆਪਾਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਮਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸਰੀਰ ਦੀ ਭਗਤੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ। ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਉਸ ਇੱਕ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ। ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਤਮਾ ਨੇ ਇਹ ਸਰੀਰ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਲਈ, ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦੇਣ ਲਈ। ਉਹ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਬਣ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਨਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਪੂਜਾ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਜਾਂ ਮੱਥੇ ਟਿਕਾਉਣ ਲਈ। ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਵਕਤ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਮਹਾਤਮਾ ਸਾਡੇ ਦਰਮਿਆਨ ਆਏ। ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਹੀ ਰਸਤਾ ਕੀ ਹੈ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਦਾ। ਤਾਂ ਆਪ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਤਜਰਬਾ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਏ, ਆਪਣੀ ਹੱਡ ਬੀਤੀ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਕੌਣ ਹੈ? ਤਾਂ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਸੁਰਤ ਤੁਨ ਚੇਲਾ। ਅਸਲ ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਤੇ ਚੇਲਾ ਬਣਨ ਦੀ ਤਾਕਤ, ਡਿਸਾਈਪਲ ਬਣਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਵੀ ਸਾਡੀ ਸੁਰਤ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਹ ਸਰੀਰ ਦੀ ਹੱਦ ਸਿਰਫ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਤੱਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਬਰਤਨ ਸਾਫ਼ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਤੇ ਕਰੂਗਾ ਵੀ ਉਹ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ, ਉਹਦੀ ਰਜ਼ਾ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਮਨ ਸਾਡੇ ਕਾਬੂ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਭਗਤੀ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਲੱਗਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਇੰਨਾ ਹਾਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹਨੂੰ ਵਿਗਾੜਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਠੀਕ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਕਾਬੂ ਆਊਗਾ ਸਿਰਫ ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਰਾਹੀਂ। ਜਦ ਇਹਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਉਹ ਲਜ਼ਤ ਮਿਲੂਗੀ, ਉਹ ਰਸ ਆਊਗਾ ਤੇ ਮਾਲਿਕ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਤੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਊਗੀ। ਅਸਲੀ ਕੰਮ ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵੱਲ ਹੀ ਆਪਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ। ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਾਡਾ ਛੁਟਕਾਰਾ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਮੁਕਤੀ ਸਿਰਫ ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਤੋਂ ਹੀ ਮਿਲੂਗੀ। ਹੁਣ ਤੀਸਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਸਾਡੀ ਅਵਸਥਾ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਉੱਚੀ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਪੂਰੀ ਨਿਮਰਤਾ ਨਾਲ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਸੰਤੋ ਗੁਰਮੁਖ ਪੂਰਾ ਪਾਈ। ਸਾਡੀ ਅਵਸਥਾ ਕਿੰਨੀ ਉੱਚੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਸਾਨੂੰ ਸੰਤ ਕਹਿ ਕੇ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ 'ਚ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਆ ਸਕੇ ਕਿ ਐਸੇ ਵੀ ਉਸ ਮਾਲਿਕ ਦੀ ਭਜਨ ਬੰਦਗੀ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਨਾਮੋ ਪੂਜ ਕਰਾਈ, ਕਿ ਅਸਲ ਪੂਜਾ ਉਹ ਨਾਮ ਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਨਾਮ ਦੀ ਪੂਜਾ ਨੇ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਮਾਲਿਕ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਪੂਜਾ ਕਰੇ ਸਭ ਲੋਕ ਸੰਤੋ, ਮਨਮੁਖ ਥਾਏ ਨਾ ਪਾਈ। ਆਪ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਜੋ ਮਨ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗ ਕੇ ਭਗਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਇੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ। ਪੂਜਾ ਕਰੇ ਪਰ ਵਿਧ ਨਹੀਂ ਜਾਣੇ, ਤੇ ਜੇ ਪੂਜਾ ਕਰਦਾ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵਿਧੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਭਗਤੀ ਵਿੱਚ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਮ ਦੀ, ਜਿਸ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਯੁਗਾਂ ਦੇ ਯੁੱਗ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਬਾਣੀ ਵਜੀ ਚੌਂ ਜੁਗੀ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਸੁਣਾਏ। ਜੋ ਅਨਹਦ ਬਾਣੀ ਜਿਸ ਨੇ 4 ਯੁੱਗ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜੋ ਜੁਗਾ ਜੁਗਾਂ ਨੂੰ ਤਾਰਦੀ ਆਈ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਨੇ ਅਨਹਦ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ। ਅਨਹਦ ਸ਼ਬਦ ਬਜੇ ਦਿਨ ਰਾਤੀ, ਜੋ ਧੁਨ 8 ਪਹਿਰ ਵੱਜਦੀ ਹੈ। अब ये धुन क्या चीज़ है? ये वो धुन है जो रात दिन 24 घंटे हमारे अंदर बज रही है। ये कोई वो धुन नहीं है जो बाजे से पैदा होती है। इसीलिए आपने इसको समझाते हुए फरमाया, धुन वाजे अनहद कोरा, मन मान्या हर रस मोरा। लफ्ज़ इस्तेमाल किया अनहद का, कि जो रात दिन 24 घंटे हमारे अंदर बज रही है। उस धुन को जब सुनेंगे, उसकी मिठास हासिल होगी, तब ये दुनिया के रंग तमाशे फीके पड़ेंगे। इंसान ज़बरदस्ती करता है, जब ज़बरदस्ती करेगा तो रिएक्शन होगा। तो यहाँ परमार्थ में ज़बरदस्ती नहीं करनी। हमने बड़े सिस्टमैटिकली ये देखना है कि मन को कैसे हमने परमार्थ की भक्ति के साथ जोड़ना है। देखो, छोटी बच्ची है, जैसे जैसे जवान होती है, अगर माँ बाप उसको समझाना शुरू कर दें कि बेटा आगे जाके तेरी शादी होगी, तूने दूसरे घर जाके अपना रिश्ता जोड़ना है, इसलिए माँ बाप को भूलना शुरू कर दे, वो बच्ची कभी कर नहीं पाएगी। मगर जिस वक्त उसकी शादी हो जाती है, दूसरे घर उसका रिश्ता जुड़ जाता है, अपने आप माँ बाप का दर्जा कम होना शुरू हो जाता है। तो वो रिश्ता कैसे जुड़ा? पहले रिश्ता जुड़ा, फिर वो दूसरी चीज़ों से अपना ध्यान हटा सकी। इसलिए हुजूर फरमाया करते थे, अटैचमेंट कॉजेज डिटैचमेंट, कि पहले संबंध जोड़ो,
जब संबंध जुड़ेगा फिर हम इन सब चीज़ों से रिश्ता तोड़ सकेंगे। और गुरुगर ने फरमाया, 9 दरवाजे नवे दर फीके रस अमृत 10 में चवीजे, कि 9 द्वारे हैं जिसके ज़रिए हमारा ख्याल सारी दुनिया में फैलता है। तो आप फरमाते हैं कि जब हम उस भजन सिमरन में लगेंगे, उस भजन बंदगी में लगेंगे, इस ख्याल को एकाग्र करेंगे और सिर की तरफ यहाँ लेकर जाएंगे, यहाँ आंखों के पीछे टिकाएंगे, वहाँ हमें वो अमृत रूपी रस हासिल होगा। उस रस को इंसान पिएगा। तो फिर आपने फरमाया, मन पीवे ताए सुभाए रे, उसको पीता है, वो इसको भाता है, इसको अच्छा लगता है, तब ये सहज अवस्था की तरफ जाता है, तब दुनिया के रंग तमाशे फीके पड़ते हैं। जब इसको असल चीज हासिल हो जाए तो फिर ये दूसरी चीजों की तरफ ध्यान नहीं देगा। 9 दरवाजे नवे दर फीके रस अमृत 10वें चवीजे। जब वो रस हासिल हो गया तब दुनिया के सब रंग तमाशे फीके पड़ जाएंगे। इस वक्त जब हम रूहानियत में कदम रखते हैं, क्योंकि सत्संग में ये चीज़ें फरमाई जाती हैं, हमारे लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है, हम सोचते हैं कि चलो मन को ज़बरदस्ती हमें इन सब चीज़ों से दूर करना है। मगर ज़बरदस्ती करेंगे तो मन रिएक्ट करेगा और उतना ज़ोर पकड़ के दोबारा उन्हीं चीज़ों की तरफ भागेगा। इसलिए हमने ऐसा रास्ता अपनाना है कि भजन बंदगी शुरू करें। जैसे जैसे भजन सिमरन में बैठेंगे अंदर से वो रस आएगा, उस रस के साथ अपने आप हमें अंदर से वो प्रेरणा मिलेगी, ताकत मिलेगी कि हम इन सब चीज़ों को पीछे छोड़ सकें। सो एक सिस्टमैटिक अप्रोच होनी चाहिए। ये नहीं कि आज से मैंने ये नहीं करना, ये नहीं करना, ये नहीं करना। देखो छोटा बच्चा है ना, सारा दिन उसको माँ बाप कहते रहें कि ये नहीं तेरे लिए अच्छा, ये नहीं अच्छा, तो वो थक हार के बच्चा कहेगा कि मैंने करना क्या है। मगर सुबह उठता है, आप उसे स्कूल भेज दो, वापस आता है, थोड़ा सा वक्त खेल के गुजार ले, फिर बैठ के होमवर्क कर ले, फिर कोई हॉबी ले ले, और सारा दिन उसका ऐसे गुजर जाता है कि रात को जब बिस्तर पे लेटता है 2 मिनट में सो जाता है। तो वैसे ही हमने बड़ा पॉजिटिवली आगे चलना है और इस चीज़ के ऊपर ध्यान देना है कि हमने क्या करना है। और जैसे जैसे वो करेंगे रस आएगा, तभी हम मन को इन चीज़ों से निकाल के उस असल भक्ति के साथ जोड़ सकेंगे, जबरदस्ती नहीं। इसलिए आपने फरमाया, धुन वाजे अनहद गोरा, मन मान्या हर रस मोरा। जब उस धुन को सुना, मन उसमें इतना मस्त हो गया। वो धुन जिसको अंग्रेज़ों ने म्यूजिक ऑफ द स्फीयर्स कह के बयान किया है, वो धुन जो आकाश से आ रही है, मुसलमान भाई उसे बांगे इलाही, बांगे आसमानी कह के बयान कर देते हैं। वो बांग जो खुदा के घर से आ रही है, उस धुन को जब इंसान सुनेगा तब ये मन दुनिया की ऐशो इशरत को छोड़ के उस मालिक की भक्ति को अपनाने के लिए तैयार होगा। इसलिए आपने फरमाया, बिन गुर शब्दे मन नहीं थौरा। उस शब्द के बगैर इसको तृप्त नहीं आएगी, ये हमारे काबू में नहीं आएगा, हम चाहे जितना मर्जी साधन अपना लें। इसलिए संतों ने कहा, मन जीते जग जीत, कि जिन्होंने मन की लड़ाई जीत ली वो ही जिंदगी में सफल हो पाएंगे, और जो मन के अधीन होकर ही रह गए उनको कोई सफलता नहीं मिलेगी। और कबीर साहब भी यही सोच हमारे सामने रखते हैं। कबीर मन मरकट भया, नेक ना धुन पते आए, सत नाम बांधे बिना हित भावे जित जाए। कबीर मन मरकट भया, नेक ना धुन पते आए, उस शब्द की पहचान नहीं कर पाया, उसके साथ अपने आप को नहीं जोड़ा। सत्य नाम बांधे बिना, जब तक उस सच्चे नाम के साथ नहीं इसको बांधेंगे, जिस पावे तिस जाए। सारी दुनिया में भागता फिरेगा, अलग अलग चीज़ों को हासिल करने में लगा रहेगा। इसलिए समझें, देखो पुराने ज़माने में ऋषि मुनि आए, उन्होंने मन को काबू करने की कोशिश की और ये सोच थी कि देखो मन इन चीज़ों को चाहता है, तो अगर हम मन को इन चीज़ों से दूर ले जाएं तो मन इनको बार बार देखेगा नहीं, तो मन की चाहत खत्म हो जाएगी। तो आपने किया, आप जंगलों पहाड़ों में चले गए, सारा कुछ त्याग के जंगलों पहाड़ों में चले गए, तो क्या मन काबू में आ गया? वहाँ बैठ के जितनी भी आपने जो कुछ भी किया उसके साथ रिद्धियाँ सिद्धियाँ जरूर मिल गई, मगर मन ने तो जब अपना नाच नचाया, इतिहास खोल के देखें, किसी को काम ने मार गिराया, किसी को क्रोध ने मार गिराया, मन तो फिर काबू में नहीं आया, क्योंकि मन तो जहाँ भी जाएंगे मन तो साथ में जाएगा। और क्या छोड़ा फिर आपने? वहाँ जाके रोटी तो फिर भी चाहिए थी, सर ढकने के लिए छत फिर भी चाहिए थी, बदन ढकने के लिए कपड़े तो फिर भी चाहिए थे।
अपनी मेहनत की कमाई छोड़ी दूसरों के ऊपर मोहताज हो गए, उनसे मांग के खाना पड़ा तो उनके भी कर्म उठाने पड़े। छोड़ा क्या फिर आपने? आजकल के दौर में नई फिलॉसफीज आ गईं, वो दूसरी तरफ पहुंच गईं। उन्होंने कहा मन इन सब चीज़ों को मांगता है, वो मन को देना शुरू कर दो। उनकी यही सोच थी कि कहीं ना कहीं तो मन इन चीज़ों से थक जाएगा। देखो छोटा बच्चा है ना, उसको कोई चीज़ पसंद है, उसको देते जाओ। रोज़ खाता जाता है, कहीं ना कहीं पेट भर जाता है, मगर मन नहीं भरता। और खाएगा तो उल्टी आ जाएगी, फिर उस चीज़ को देखना गवारा नहीं करता। मगर वो भी इस मन की ताकत को पहचान नहीं पाए, क्योंकि मन तो एक अंधा कुआं है। जितना मन को दोगे उतनी इस मन की चाहत और बढ़ेगी। देखो राजे महाराजे आए, कितनी धन दौलत इकट्ठी की, क्या उनकी भूख मिट गई? इतनी औरतों की जिंदगी बर्बाद कर दी, क्या उनकी प्यास खत्म हो गई? बड़े बड़े डिक्टेटर आए, उन्होंने सारी हुकूमत मुट्ठी में बंद करने की कोशिश की, क्या उनकी भूख मिट गई? मन की तो ऐसी अवस्था है कि जितना इसको दोगे उतनी ही इसकी प्यास और भूख बढ़ेगी। इसलिए आप कहते हैं ना सुख विच गृहस्थ दे, ना सुख विच छड़ गया, सुख है विच विचार दे, संता शरण पिया। ना भोगी बनके और ना त्यागी बनके। भोगी बनके सोचेंगे मन काबू में आएगा, नहीं आएगा। और त्यागी बनके सोचेंगे मन काबू में आएगा, नहीं आएगा, रिएक्शन होगा। इसलिए आप कहते हैं सुख है विच विचार दे। अब तक हम अपनी विचारधारा को सही रास्ते पे नहीं लाएंगे, इन चीज़ों को अच्छी तरह समझ नहीं पाएंगे। और ये सोची कहाँ से मिलेगी? आप फरमाते हैं संता शरण पिया, उन गुरमुखों की संगत में जाकर। वो हमें समझाते हैं, वो साधन बताते हैं कि हमने कैसे इस मन को काबू करना है और कैसे उस मालिक की भक्ति में अपने आप को लगाना है। मगर इंसान बाहर मुखी हुआ बैठा है। देखना जिन हार देखना। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। ऐसी वीडियोस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो और बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे कर दें, ताकि मेरी वीडियोस के अपडेट्स आप तक पहुंचते रहें। मैं आपका दोस्त देविंदर सिंह, मिलता हूं अगली वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय। कोटि जन्म के दुख गवा